I hope I'm audible and my screen is also visible. Thank you. So, starting with the session, as I told you yesterday only that we are going to start the new topic, that is media access control, or we can say medium access control, in short MAC. And in the last session we have done with the forward error correction techniques, and in those we have done the Hamming distance XORing, then chunk interleaving. From these methods and from these mechanisms we can correct the errors up to some extent. Okay, we have other mechanism also which can correct the error in a full, with the full-fledged error correction can be done with the help of those mechanisms. So now let us move to the next topic, or the new topic, that is media access control. Okay, in that again it is going to take much time and more time, because it is having actually a more number of components. Okay, more number of protocols. Okay, and I just want to show you this classification first. As you can see, uh, we are going to learn this multiple access protocol. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This channelization protocol is not there in our syllabus. Okay, so we have multiple access protocol in which random and control, these two kinds of protocols have been introduced in our syllabus only. Okay, so first let us start with the MAC, that is medium access control. Okay, uh, when we started the third chapter and we were learning the, you know, OSI reference model. Okay, in that OSI reference model we came to know that our data link layer is divided into two sections. I think one was data link control, कुछ तो ऐसा नाम था, and the second was MAC, that is media access control. So data link control and the second was media access control. सो फर्स्ट वाला पार्ट में तो ये सारा आपका आया जो हम लोग ने प्रीवियस सेक्शन में देखा. वी हैव दिस नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ओके, because you also know that when sender is sending some data, or when sender or is transmitting some data, then the data has to be transmitted via some cable. Okay, via some medium. Okay, it is better when I if I say the medium word. Okay, so that is the better word. So this is my medium. Okay, the medium is quite inclined. ऐसा मीडियम होना ही होता है, थोड़ा सा अच्छा मीडियम बनाता हूँ. स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है. ठीक है, सो दिस इज द मीडियम. ओके, आई हैव अ सेंडर एंड आई हैव अ रिसीवर ओवर हियर. ओके, so if this is my medium. Okay, this is my wire, this is my twisted pair cable, maybe this is my coaxial cable, or maybe it is the fiber optic cable, whatever it is. Okay, so this is my medium. Okay, and medium is the, the channel, or we can say the place where your data is going to transmit. Okay, so if it is very good if we are having only one sender and only one receiver. Okay, it will be very good if we are having only one sender and one receiver, but this is not the case. You can just take the example of the Wi-Fi in our home, that we are having Wi-Fi router in our home. Okay, or in colleges, wherever it is. Okay, and lot of people are accessing the internet from that particular Wi-Fi router. So how the things are going on, and only one cable is connected to that Wi-Fi router. So from which the internet is coming. Okay, and your Wi-Fi router is broadcasting the signal, the internet, to all the users. Okay, who are located in that particular area. Okay, so when multiple user, this 1, 2, 3, 5, 10, multiple जितने भी है, when all these user will send their request, then all the requests will be sent through that particular a single wire only. Okay, so ये आपका वाईफाई राउटर है. ठीक है, और यहाँ पर आपके बहुत सारे यूजर हैं. ठीक है, so all these user are there who are trying to access the internet. Okay, so all these users are accessing the internet via this Wi-Fi router, and Wi-Fi router is accessing, sorry, your Wi-Fi router is getting the internet from a single cable. Okay, and you have a server over here. ठीक है, example consider करो, this is the server and this is the Wi-Fi router. Okay, this is Wi-Fi router.
Wi-Fi router. Okay, so Wi-Fi router is taking the signal. Excuse me. Sorry for the inconvenience. Okay. Yes, I got the message right now only that LLC logical link control. So whatever actually I didn't remember that link that control. Okay, we are working on the second part. Okay, so हम लोग क्या देख रहे थे? Okay, we have a Wi-Fi router. Okay, I was just trying to understand you people that how this your media access is being controlled. Okay, so this is my medium. Okay, ये मेरा एक medium है or I can say media medium one is the same thing. Okay, so the Wi-Fi router is connected with my one single cable which is coming from the server. Okay, my Wi-Fi router is broadcasting the signal to all the user and all the user will be able to access the data. Okay, so when all the user will एक ने गूगल सर्च किया, एक ने याहू सर्च किया, एक ने यूट्यूब सर्च किया, तो ये सारी रिक्वेस्ट आपकी जाएंगी वाईफाई राउटर के पास में और वाईफाई राउटर के थ्रू आपके सिंगल केबल से जाना है. ठीक है, अभी देखो हमारा सिंगल केबल तो हमारा सिंगल है बट ये हमारी जो रिक्वेस्ट है मल्टीपल है. ओके, सो दिस इज आर मीडिया. ओके, सो ये यहाँ से याहू की रिक्वेस्ट जाएंगी, ये यहाँ से यूट्यूब की रिक्वेस्ट जाएंगी, या यहाँ से गूगल की रिक्वेस्ट जाएंगी या कोर्सेरा की रिक्वेस्ट जाएंगी. So we have this multiple requests which are coming from the user to the single cable. Okay, that is a single media. Okay, so how that media is going to react. Okay, तो मेरा जो मीडियम है उसके अंदर जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आने वाली है तो उसका कंट्रोल कैसे होने वाला है. ओके, तो ये हमको देखना है. ठीक है, अदर क्या होगा, हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट two requests which are coming from the sender and they may collide each other and both the packet destroyed. Okay, तो ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, तो इसके लिए जो आपका मीडियम है उसके एक्सेस को कंट्रोल करना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन. ओके, so we are going to learn about this only that how your media ka access can be controlled. Okay, so it can be controlled with the help of multiple protocols. Okay, and those protocols we are going to see. Otherwise what will be the situation? Just look at this image. You can see this is the assembly. Okay, assembly में आपने देखा हो कितनी चीख पुकार होती है, लोग एक दूसरे को एक दूसरे की बात को काट के आंसर करते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है, मार तोड़ की लफड़े की झगड़े की सिचुएशन हो जाती है. ओके, तो आपका जो मीडियम है, ओके, इस मीडियम के अंदर से भी आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट का क्या हो रही है, जा रही है. ओके, so multiple requests are transmitting from that particular medium and if the access अपना चारों को आपने एक्सेस दे दिए, चारों को एक साथ में एक्सेस दिए, अब चारों लड़ झगड़ के गए, चारों एक दूसरे से टक्कर खा के गए, then what will happen, they will collide with each other and your data will be destroyed. क्योंकि आपका डेटा फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको रिसेंड करना पड़ेगा. तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है. ओके, then what you need to do, you need to control this medium. Okay, how you can control this medium, you can have a lot of options. Okay, आप भी बोलो कि अभी एक टाइम पे एक जाएगा, चलो पहले याहू वाला जाओ, उसके बाद में रुको, याहू वाला पहुंच गया, ठीक है, गूगल वाला जाओ, यूट्यूब वाला जाओ, ये वाला जाओ. ओके, एक सिचुएशन ही हो सकती है. या फिर आप अपने मीडियम को का एक्सेस प्रॉपरली ऐसे मैनेज करो सो दैट दूसरे के जो फ्रेम्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो. ओके, so somehow we have to manage so that in a medium the access of the medium should be in the controlled way. Okay, okay, so वो out of control नहीं होना चाहिए बल्कि controlled way में होना चाहिए. And for that only we are having these number of protocols. This is the taxonomy of multiple access protocol.
in which your multiple access protocols are divided into three different categories. One is a random access protocol, second is controlled access protocol, and the third is channelization protocol. इसमें जो सबसे जो अच्छे बंदे हैं ना वो कंट्रोल्ड एक्सेस वाले हैं, ठीक है। इन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता, ऑल आर लाइक एनीथिंग, ठीक है भाई, हम अपनी मर्जी से जब आया हम सेंड करेंगे, ठीक है। सो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में दे नो वन इज सुपीरियर टू अनदर, ओके। तो कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई दूसरे से छोटा नहीं है, जिसकी मर्जी आती है वो उठा के अपना डेटा ट्रांसमिट करना चालू कर देता है, ठीक है। So these are we have some kind of protocol that these are random access protocol. यहाँ पर आपके ना collision के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, okay? So in random access protocol we're going to learn Aloha, ALOHA, इसको हम लोग Aloha कहते हैं. The second is CSMA, that is carrier sense multiple access. तो आपका जो कैरियर है, आपका जो मीडियम है, उसको पहले सेंस करो, अगर वो फ्री है तभी सेंड करो, नहीं तो वेट करो, ये हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बोलता है। उसके बाद में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, भाई क्या हुआ, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस हो सकता है आपने सेंस करके गए, फ्री देख के गए, लेकिन फिर भी कोलिजन हो गया, पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज CD, collision detection, okay। So carrier sense multiple access with collision detection. The fourth is CSMA, that is carrier sense multiple access with CA, that is collision avoidance, okay। In collision avoidance we have few mechanism, दो तीन मेथड है जिसके थ्रू हम लोग collision को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें you're going to learn in the random access protocol. In the controlled access protocol we have three mechanism, we have three method like reservation, polling and token passing. तो ये भाई साहब जो है ना बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेके जाते हैं, सो दैट किसी का नुकसान ना हो, किसी का कोई फ्रेम टूटे फूटे ना, कोलाइड ना हो, कोलिशन ना हो, और हमारे फ्रेम्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। दैट इज ऑल इन द कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, ओके। चैनलाइजेशन की तो बात अभी है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो उसको रख दीजिए साइड में, ठीक है। सो ये स्लाइड में मैंने वही बताया हूँ आपको, व्हेन नोड्स और स्टेशंस आर कनेक्टेड एंड यूज अ कॉमन लिंक, कॉमन मीडियम, ओके। मैंने बताया आपको याहू और गूगल एंड यूट्यूब, ऑल द रिक्वेस्ट आर कमिंग, ऑल द स्टेशन वांट्स टू सेंड द डेटा फ्रॉम द सेम मीडियम, द शेयर्ड मीडियम, ओके। That is the common link called a multi-point or a broadcast link. We need a multiple access protocol to coordinate access to the link. तो उसका जो एक्सेस है आपके आपके लिंक का, आपके मीडियम का जो एक्सेस है वो क्या होना चाहिए, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, सब एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे और आपके फ्रेम्स कोलाइड हो जाएंगे। The problem of controlling the access to the medium is similar to the rules of speaking in an assembly. And many protocols have been devised to handle access to the shared link. All of these protocols belong to the sublayer, वगैरह वगैरह. So we have this multiple access protocol in which we have already seen random access and control access. Okay, तो ये दिमाग में आपको ये डायग्राम बता के रखना है। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या तो रैंडम एक्सेस पूछ लेगा या तो कंट्रोल एक्सेस पूछ लेगा, ठीक है। या तो आपको थोड़ा सा फिर अलग वे में पूछेंगे, बट क्वेश्चन एग्जाम में इस पर आता है, ओके। सो इन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इट हैव बीन कैटेगराइज। अच्छा, जब कैटेगराइजेशन करेंगे तो तीनों की करना है, लेकिन एक्सप्लेन आप दो को ही करेंगे, ओके। बिकॉज आपका जो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है इट ऑल्सो कम्स अंडर दी मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल कम टू द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म रैंडम एक्सेस, ओके। In random access, no station is superior to other station and none is assigned control over other. एक को दूसरे का कंट्रोल नहीं है, दूसरे को पहले वाले का कंट्रोल नहीं है, पहला वाला दूसरे से बड़ा नहीं है, दूसरा वाला पहले से बड़ा नहीं है, यानी कि all have a freedom to send the data, to receive the data, ठीक है। First thing, that is random access. At each instance, station that has the data to send uses a procedure defined by the protocol. At any moment of time, if any of the station wants to transmit the data, they can follow the procedure and they can start transmitting the data. Random access. Third point, two features give its method its name, ठीक है। इसका नाम random access क्यों है? Because of two feature. First, there is no scheduled time. कोई टाइमिंग भी नहीं, ऐसा बोला गया भाई ये देखो सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको सेंड करना है, ऐसा कोई शेड्यूल ही नहीं दिया हमने, ठीक है। सो जिसकी मर्जी आए वो उठा के ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर सकता है। Transmission is random among the station, okay। So these are the two feature from which the
ये मेथड का नाम रैंडम पड़ा है। अब तो रैंडम तो हम लोग खुद भी समझ सकते हैं, बट है पॉइंट्स तो मैंने डाल दिया था। ओके, so this is the random access. Why the name random access, and what is what do you mean by this random access? So no one is not a single station is superior to another station. Okay, and none is assigned a control over the another station. ठीक है, एक दूसरे का मतलब we have a full freedom. Okay, जिसकी मर्जी at any moment of time wants to send the data, they can start transmitting. They first have to follow the procedure and they will start transmitting the data. So random access. In the random access method, each station has the right to the medium without being controlled by any other station. One the same thing, same point है. However, if more than one station tries to send, there is an access conflict. Obviously, ये तो होना ही है. Okay, जब आपने इतनी freedom दे के रखी है, so this is the possibility that there is a possibility that multiple or two or more station will send the data at the same time. Okay, it is possible that two or more station will send the data, will transmit the data at the same time. एंड रिजल्ट क्या होना है आपको तो पता है. ठीक है, जब साथ में करेंगे तो फिर कोलिजन तो होना है. और फिर क्या होगा, फिर आपके फ्रेम्स विल बी इधर डिस्ट्रॉयड और मॉडिफाइड. मॉडिफाइड मतलब कुछ एरर कुछ तो आ जाएगा. ठीक है, आपका जो सिग्नल का शेप है वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो दीज टू थिंग्स आर पॉसिबल. यानी कि कोलिजन हो सकता है और या तो डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है, सो रैंडम एक्सेस में हमारा ये सिनेरियो है. ओके, व्हाट टू डू. I've added few slides from my side also, so that we'll come to the exact point. To avoid access conflict or to resolve when it happens, each station follows a procedure that answers the following question: when to access, what if busy, how to acknowledge if success or failure. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, कब एक्सेस करना. अगर कभी ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो थोड़ा एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. यानी जो मीडियम है उसका जो एक्सेस है उसमें जो कॉन्फ्लिक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. इफ वी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस. व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हेन टू एक्सेस. भाई मीडियम को कब एक्सेस करना, ये अगर आप डिफाइन कर लो तो हो सकता है कंट्रोल में आ जाए. नंबर टू, व्हाट इफ बिजी. अगर कभी आप गए और कोई ऑलरेडी सेंड कर रहा है, तो भाई कोई ऑलरेडी सेंड कर रहा है तो यू कैनॉट यूज इट दिस मीडियम बिकॉज समवन इज यूजिंग दिस. ओके, तो अगर कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है मतलब बिजी है, इट मीन दैट यू कैनॉट यूज इट. ओके, so what if busy, then we need to answer this question. हाउ टू एक्नॉलेज इफ सक्सेस और फेलियर. अगर सक्सेस होता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट क्या होना चाहिए, और अगर फेलियर होता है कॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, देन व्हाट शुड बी द आंसर. ओके, व्हाट शुड बी द एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन वी नीड टू आंसर in order to avoid the conflict, in order to avoid the access conflict. ये जो मीडियम को एक्सेस करने में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनको अगर रिजॉल्व करना है तो ये क्वेश्चंस का आंसर हमको करना पड़ेगा. ओके, the very first protocol, or we say the very first method under the random access protocol is Aloha. Okay, in Aloha we have again two categories. One is the pure Aloha, and in the second we have the slotted Aloha. ठीक है, slotted Aloha is the improvement version of the pure Aloha. ठीक है, Aloha कुछ नहीं बल्कि एक प्रोटोकॉल का नाम है, एक प्रोसीजर का नाम है, एक मेथड का नाम है. ठीक है, let us start with this one, that is Aloha. Aloha सबसे पहले क्या बोलता है, earliest random access protocol, earliest random access method, whatever you say, protocol or method, कुछ भी बोलो. It was developed in early 1970. It was designed for the radio LAN. इसके लिए डिजाइन किया. It is obvious that there are potential collision in this arrangement. Even if we follow the Aloha procedure, whatever procedure Aloha is telling us to follow in order to avoid the access conflict, फिर भी होंगे, फिर भी collision होंगे. देखते हैं आगे. The medium is shared between the station. आपका medium, आपका link is shared among multiple users because बात ही चल रही है यहाँ पर multiple users की. When a station sends data, another station may attempt to do so at the same time. Sorry. So if multiple station will try to attempt or will try to transmit the data at the same time, then what will be the result? The data will be modified. That's very simple. These points we have already seen in the previous slide also. So in Aloha, basically it's a pure Aloha. So what your pure Aloha says first? The original Aloha protocol is the pure Aloha. Okay, and this is the simple but elegant protocol.
The idea is that each station sends a frame whenever it has a frame to send. देखो, we are just starting from the very basic version of the random access protocol. Okay, सबसे पहले आपका प्योर अलोहा आएगा, ठीक है। उसके बाद में विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड देन विल शो स्लॉटेड अलोहा। ओके, फिर स्लॉटेड अलोहा में भी कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स रहेंगे। देन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द स्लॉटेड अलोहा इश्यूज we will introduce the third one, that is CSMA. Okay, CSMA आ गया। CSMA, that is carrier sense multiple access, another protocol we'll learn later. Okay, so CSMA में भी कुछ थोड़े से इशू रहेंगे। तो फिर आपका आएगा भाई, इसके अंदर आपका कोलिजन को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो विल कम एंड विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट वन, दैट इज CSMA CD। ओके, CSMA CD के बाद में फिर बोले भाई अब कोलिजन तो डिटेक्शन हो गया, अब इसको अवॉइड कैसे करना है। सो विल ब्रिंग द फिफ्थ वन, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, CA। ओके, मैंने आपको बताया अभी सारे। तो सबसे पहला आपका प्योर अलोहा इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सेकंड आएगा, उसका नाम रहेगा स्लॉटेड अलोहा। उसमें कुछ इश्यूज है, उनको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव अ थर्ड वन, दैट इज CSMA, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मैं आपको पूरा फ्लो अभी बता रहा हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद वन बाय वन। ओके, तो ये हो गया आपका CSMA। आफ्टर CSMA वी हैव carrier sense multiple access, then we have now there's a requirement of detection of the collision। तो collision detection के लिए next one CSMA CD। okay, उसके बाद में अब collision को detection हो गया, now we need to avoid the collision। ठीक है, in order to avoid the collision we have a CSMA CA protocol or method। okay, so we are going to learn 5 method or 5 protocols in random access protocol। okay, starting with the first one, that is pure aloha। okay, so प्योर अलोहा बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, कुछ ज़्यादा मेथड नहीं है। सो सिंस देयर इज ओनली वन चैनल, वन मीडियम टू शेयर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्रेम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। सो तो फ्रेम्स के अंदर आपके जो फ्रेम सेंड करेंगे मल्टीपल स्टेशन, व्हेन दे विल ट्राई टू सेंड द फ्रेम, सो देयर इज अ चांसेस दैट कोलिजन विल हैपन। ओके, तो कोलिजन होने के चांसेस में भी ज़्यादा है। Let us see with the help of diagram. The diagram will tell you each and everything. Okay, suppose now focus on the diagram. Suppose we are having 4 stations who are there, who wants to access the medium. Okay, we have 4 stations, station number 1, station number 2, station number 3 and 4. So you can see all the stations are at the at one side, and they wants to share the medium and they wants to use the medium, not share, they want to use the medium। okay, so station 1 ने ये टाइम पे you can see the arrow mark, ये आपका जो एक्सेस है, दिस इज द टाइम एक्सेस। तो ये टाइम पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हुआ 0। ठीक है भाई साहब, अब एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, योर स्टेशन 1 विल सेंड द डेटा। ठीक है, अभी बाकी सारे स्टेशन देखो खामोश बैठे, ये यूज नहीं कर रहे हैं, बट इनको यूज करना है। ओके, इनको हम लोग ने पिक्चर में लेकर आ गए। ओके, नाउ स्टेशन 1 विल सेंड द डेटा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो स्टेशन 1 ने डेटा सेंड कर दिया भाई साहब ने, उसका डेटा पार हो गया, निकल गया, कोई कोलिजन नहीं हुआ, बिकॉज एट द सेम टाइम नॉट अ सिंगल स्टेशन अदर देन स्टेशन नंबर 1 was ready to send the data। so कोई मूड में नहीं था, तो स्टेशन नंबर 1 का फ्रेम नंबर 1 आराम से निकल गया। ओके, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ये वाला जो मोमेंट ऑफ टाइम है, इसमें at this moment of time your station number third think of transmitting the data। ठीक है, तो ये भाई साहब ने डेटा सेंड करना चालू किया। अब जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचे, मतलब अराउंड ये वाला, ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट पे पहुंचे, तो स्टेशन 2 के भी दिमाग में आया कि मुझे भी डेटा ट्रांसमिट करना है। एंड यू नो इन द रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल नो वन इज सुपीरियर टू अनदर। ओके, नो वन मतलब कुछ शेड्यूल भी नहीं है, कब सेंड करना है, किसको सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो स्टेशन नंबर 2 के माइंड में आया, स्टेशन नंबर 2 थिंक्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा एंड इट स्टार्ट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर, इट विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा। ठीक है, सो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम स्टेशन 2 स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो भाई साहब कोलिजन तो होने वाला है। ठीक है, बिकॉज मीडियम तो सेम है। ठीक है, यहाँ हो गया। उसी टाइम पे क्या हुआ, फिर स्टेशन नंबर 4 को भी आगे दिमाग में, उसको भी सेंड करना है, तो स्टेशन नंबर 4 पे भी भाई साहब ने सेंड कर दिए। और वहीं पर थोड़ा सा आगे स्टेशन नंबर 1 को वापस से डेटा सेंड करना था, उसने भी डेटा सेंड किया। ठीक है, सो ऑन दीज डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम, स्टेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, नॉट सॉरी, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 4, स्टेशन नंबर 1,
things for transmitting the data, and at this moment of time only the collision occurs. Okay, तो यहाँ collision occur हुआ, तो आपका स्टेशन नंबर 1 का फ्रेम नंबर 2, स्टेशन नंबर 2 का फ्रेम नंबर 1, स्टेशन नंबर 3 का फ्रेम नंबर 1, स्टेशन नंबर 4 का फ्रेम नंबर 1। तो ये आपके इनके तो पहले पहले फ्रेम थे, इसका सेकंड वाला फ्रेम था। ठीक है, सो यहाँ पर कोलिजन हुआ और आपका ये वाला फ्रेम भी गया। ठीक है, आपका ये वाला फ्रेम भी निकल गया, ये वाला फ्रेम भी गया और ये वाला फ्रेम भी गया। ठीक है, तो क्या हो गया, कोलिजन। रिजल्ट क्या आया, कोलिजन से आपके फ्रेम्स डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, ये हो गया। फिर चलो चलते 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 और आगे तक गए, तो सब लोग खामोश बैठे अभी। ठीक है, कोई कोई किसी ने हाँ हूँ कुछ किया नहीं। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम योर स्टेशन टू थिंक फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा एंड इट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग। फिर स्टेशन नंबर 4 ने भी सोचा, भाई सब लोग बहुत देर से खामोश बैठे, चलो मैं ट्रांसमिट करता हूँ। और भाई साहब ने सोचे और फिर वापस से इन दोनों के बीच में कोलिशन हो गया, दोनों के फ्रेम वापस से डिस्ट्रॉय हो गए। जब दोनों के फ्रेम वापस से डिस्ट्रॉय हो गए, तो फिर दोनों के फ्रेम चले गए, हो गया। फिर ये मोमेंट ऑफ टाइम पे आपका स्टेशन, देखो इन सब के हो गए अभी। ठीक है, स्टेशन नंबर 3 ने के को आया, station number thing start of things for transmitting the data at this moment of time। so ये भाई साहब ने ये moment of time पे डेटा ट्रांसमिट करना चालू किया। अब वो टाइम पे कोई था ही नहीं, ये भाई साहब का डेटा निकल गया। ठीक है, सो नाउ टेल मी, स्टेशन नंबर 1 के कितने फ्रेम्स थे, 2, इसके 2 2 2, तो 2 4 आर 8, टोटल 8 फ्रेम्स थे। और 8 फ्रेम्स में से सही सलामत के कितने पहुंचे आपके, ये वाला और ये वाला। ओनली 2 फ्रेम्स हैज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन सेफली। तो बताओ, 2 फ्रेम्स आउट ऑफ 8 फ्रेम्स क्या परसेंटेज आया, ओनली 25% ऑफ द फ्रेम्स एबल टू रीच द डेस्टिनेशन सेफली। ओके, सो ये हमारे प्योर अलोहा का एक एग्जांपल है। ठीक है, सो इफ यू यूज द प्योर अलोहा मेथड, then in the shared link or in the shared medium, then this is just an example. Okay, we are having 4 station over here, you can present with the help of 2 station also, 3 station also, 5 station. So this is just a presentation in order to show the working of the pure aloha. So this is actually happening in the pure aloha. ठीक है, so हमारे pure aloha के अंदर कोई खास मेथड नहीं है, सिर्फ इतना है कि only one channel is shared, मतलब only one channel is there। okay, and all the station has to use the same link, same medium to transmit the data from sender to the receiver, they have to use the same medium। okay, and there is a possibility of collision between the frame from different station, from different stations। so these frames are from different stations, so collision उनके बीच में हो सकता है। और एक पॉइंट इसका ये है, the idea of the pure aloha, the idea of the pure aloha is that each station sends a frame whenever it has a frame to send। जब भी उनके पास में फ्रेम सेंड करने को आया तो वो सेंड कर देंगे। ठीक है, कुछ देखेंगे नहीं मीडियम है, कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, उठा के अपना फ्रेम सेंड कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्योर अलोहा का। ठीक है, सो आफ्टर लुकिंग एट दिस डायग्राम वी केम टू नो दैट भाई इसमें तो बहुत नुकसान हो रहा है। ओके, अब नुकसान हो रहा है, देन वी नीड टू थिंक मोर ऑन दिस अलोहा। ओके, तो उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन आया। ओके, सो साइंटिस्ट वर्क ऑन इट। ओके, people work on it and then they came to know, and they came with the second version of the aloha, and they called this aloha as the slotted aloha। ठीक है, so they came with the second one। देखो ये पूरा इसका explanation है। ठीक है, so I have added this slide so that you can actually read the slide and you can get the thing what is happening over here। तो मैंने आपको अपने orally बता दिया, so no need to explain and no need to read all this thing। okay, coming to the improved version or the next version, or in order to improve the efficiency of the pure aloha, efficiency यहाँ पर हम लोग ने दिए देखे only 25% आ रहा है। okay, so we came up with the next one, that is slotted aloha। slotted aloha भी इसके जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसमें changes है। okay, that changes you need to mention। in slotted aloha we divide the time into slot। तो भाई साहब ये जो हमारा टाइम जो नीचे देखे ना आपने एरो, ओके, so that time was divided into number of slot। okay, say TFR। ठीक है, so फ्रेम के जो टाइम है उसको आपने फ्रेम वाइज उसको कर दिया।
एंड फोर्स द स्टेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्लॉटेड अलोहा का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही लाइन में है, ओके। सो सबसे पहला पॉइंट रिगार्डिंग द स्लॉटेड अलोहा इज दैट द स्लॉटेड अलोहा was invented to improve the efficiency of pure aloha, very first point. Second point, in slotted aloha we have divided the time into number of slot, second point. Third point, we force the station, we force all the station, जो भी station involved है। In the previous case, how many station were involved? 4 station were involved, okay। So we will tell all the station, and we will force all the station to send only at the beginning of the time slot, ठीक है। तो अगर आपका ये टाइम स्लॉट है, ठीक है, अगर आपका टाइम स्लॉट है, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, सॉरी आपका पूरा टाइम है और आपने इसको स्लॉट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो ये आपने स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। थोड़ा इसको मैं और आगे खींच लेता हूँ तो एक स्लॉट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया, ये हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4, ठीक है। स्टेशन नंबर 1 के दिमाग में आया कि मुझे सेंड करना है, बट द रूल इज व्हाट, but the rule says that we have to send the data, we have to send the frame at the beginning of the time slot only, ठीक है। तो भाई साहब को टाइम 0 पे जिसको याद आया, स्टेशन नंबर 1 2 3 4 चारों में से जिसको याद आया वो सेंड कर देगा। तो उसमें से स्टेशन नंबर 1 को याद आया खाली, ठीक है, तो स्टेशन नंबर 1 ने अपना डेटा सेंड कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4 को याद नहीं आया, ओके। देन उसके बाद में, अच्छा मैं डायग्राम क्यों ड्रॉ करूँ, डायग्राम तो है हमारे पास ऑलरेडी, चलो ठीक है, अब हम लोग डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड द टाइम इनटू स्लॉट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, विल फोर्स द स्टेशन टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। ये 3 पॉइंट आपको स्लॉटेड अलोहा के लिए याद में रखना है, ठीक है। नाउ व्हाट आर दोस? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट this slotted aloha was invented in order to improve the efficiency of the pure aloha. Second, पूरे टाइम को स्लॉट में डिवाइड कर दिया, हो गया नंबर 2। नंबर थर्ड, we will allow all the station to send at the beginning of the time slot only। अगर आप बिगिनिंग अगर आपने मिस कर दी तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम स्लॉट तक वेट करना है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट, ओके। तो अगर टाइम 0 पे किसी स्टेशन को याद नहीं रहा और अगर टाइम 1 पे अगर फॉर एग्जांपल 0 से आगे बढ़ गए और उसके बाद में अगर किसी स्टेशन को याद आ रहा है कि मतलब याद नहीं आ रहा है, मतलब उसको अगर रिक्वायरमेंट आ रही है कि इट हैज़ अ डेटा टू सेंड नाउ, ओके, देन व्हाट इट हैज़ टू वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम स्लॉट, ओके। तो बाद में नहीं सेंड कर सकता, उसको बाद में सेंड करना है, दूसरे स्लॉट में उसको वेट करना है, ठीक है। सो उसका डायग्राम देखते हैं। So again we are having 4 station. I just forgot that we have a diagram too. I was drawing the diagram in the previous slide only. So this is my station number 1, this is my station number 2, station number 3, and station number 4, okay. And what we have done, we have divided the time into number of time slots, okay. Slot 1, slot 2, 3, 4, 5, 6, so total I have made 6 slot, okay. अगर आपको आगे बनाना है so we can make it also, ठीक है। So अब देखो स्टेशन नंबर 1, अच्छा ये टाइम आपका 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। So at the beginning of the time slot, the first time slot, station number 1 only think that I have a not think, it has a requirement to send the data or to transmit the data, ठीक है। So खाली स्टेशन नंबर 1 को रिक्वायरमेंट आया, so it has started the transmitting the data, उसका डेटा पार हो गया, ठीक है। अब होने के बाद में हो गया टाइम, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो आपका फ्रेम है ये पूरे टाइम स्लॉट में ही जाएगा। हो सकता है आपका जो है ना, ये आपका जो फ्रेम है वो इतना ही है खाली, और ये सेंड होने के बाद में भी आपका टाइम बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है। सो नो वन कैन डू एनीथिंग बिकॉज आपको चांस दिया गया था कि यू हैव टू, एंड वी हैव फोर्स टू पीपल दैट यू हैव टू सेंड द डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट ओनली, ठीक है। सो आपको खाली बिगिनिंग में भेजना है, और अगर बिगिनिंग आप मिस कर जाते हैं देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम स्लॉट बिगिनिंग, ओके। सो फर्स्ट टाइम स्लॉट चला गया, उसमें खाली आपके स्टेशन नंबर 1 ने फ़ायदा उठाया, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइम स्लॉट टाइम स्लॉट नंबर 2 के अंदर स्टेशन नंबर, अच्छा यहाँ पर हो सकता है स्टेशन नंबर 2 को यहाँ पे रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, जो देखो मैं कर्सर बता रहा हूँ। सो स्टेशन नंबर 2 got the requirement that it has to send the data at this moment, okay, but at this moment of time no one can send the data, okay। या चलो यहाँ पर भी उसको अगर रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी रिक्वायरमेंट आता है, तो हमारा जो प्योर अलोहा था वो क्या करता था, ठीक है अलाउ कर दो, ठीक है, सबको अलाउ कर दो। तो आपका स्टेशन नंबर 2 यहाँ पे डेटा सेंड करता था
अगर वो यहाँ पे डेटा सेंड करता था तो क्या हो जाता था, कोलिजन हो जाता था, ठीक है। और ये हमारी एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट लाने की वजह से यहाँ पर हमारा कोलिजन बच गया है, ठीक है। Just try to understand the difference between the pure and the slotted. Okay, so whatever arrangement we have made and we have done in the slotted aloha, so it makes some sense and it will prevent us to have the collision. ठीक है, not us, the आपके जो पैकेट्स, आपके जो फ्रेम है उनका कोलिजन होने से बचाएंगे। ओके, सो ये हमारा होने से बच गया, तो इसको मैं वापस रिमूव करता हूँ। ओके, सो हाँ, तो आपका टाइम स्लॉट 1 हैज फिनिश नाउ। ओके, द स्टार्ट ऑफ द सेकंड टाइम स्लॉट। ओके, सो यहाँ पर और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके स्टेशन नंबर 2 एंड स्टेशन नंबर 3 हैज़ अ रिक्वायरमेंट टू ट्रांसमिट द डेटा। सो जैसे टाइम स्लॉट का बिगिनिंग स्टार्ट होगा, so they both are ready कि भाई हमको तो सेंड करना है, because we have a requirement now and we are waiting for a long time। तो दोनों के आपके स्टेशन नंबर 2 विल सेंड द डेटा एंड स्टेशन नंबर 3 विल आल्सो सेंड द डेटा। तो दोनों ने सेंड किए और रिजल्ट क्या आया, दोनों का कोलिशन हो गया। तो भाई साहब के दोनों के दोनों भी निकल लिए। उसके बाद में स्टेशन नंबर, अच्छा अब ये मोमेंट ऑफ टाइम पे और ये मोमेंट ऑफ टाइम पे, इस टाइम पर आपका स्टेशन नंबर 1 एंड स्टेशन नंबर 4 वाज वेटिंग टू ट्रांसमिट द डेटा। बट रूल तो रूल है भाई कि आपको आपको मतलब कोई भी टाइम स्लॉट के बिगिनिंग में ही सेंड करना है। सो दे वेटेड फॉर दिस मच ऑफ टाइम। ओके, और वेट करने के बाद में जब टाइम स्लॉट 3 स्टार्ट हुआ, देन स्टेशन नंबर 1 ट्रांसमिट द डेटा, स्टेशन नंबर 4 ऑल्सो ट्रांसमिट द डेटा। ठीक है, दोनों ने ट्रांसमिट किए। आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा अगेन क्या हो गया, कोलिजन हो गया भाई साहब। अगेन हमारे 2 लोग मारे गए, तो बेचारे 2 लोग निकल गए। ठीक है, अब स्लॉट नंबर 4 में स्टेशन नंबर 2 was having requirement to स्टेशन नंबर 2 send it second frame। तो भाई साहब का सेकंड फ्रेम निकल गया। ओके, और दिस इज जस्ट एग्जांपल, एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेशन। ओके, ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली द केस इन द रियलिटी। ओके, हो सकता है इसके अंदर हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 लोग मारे गए हो सकता है रियलिटी में 2 ही लोग मारे जाए, या हो सकता है रियलिटी में 5 लोग, मतलब 5 फ्रेम मारे जाए। ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट। सो हो सकता है 5-6 फ्रेम हमारे लॉस्ट हो जाए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड विद द कंडीशन और द सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर हमारे 2 फ्रेम्स कोलाइड हो गए और चले गए बेचारे। उसके बाद में स्टेशन नंबर 2 का जो सेकंड फ्रेम था, ये हमारा बेचारा पप्पू पास हो गया। फिर हमारा फ्रेम नंबर 2 ऑफ द स्टेशन नंबर 4, ये भी हमारा निकल गया, ये भी हमारा निकल गया। ठीक है, सो जस्ट एक छोटा सा, अगर हम लोग फॉर दिस सिचुएशन इफ वी कैलकुलेट, देन आउट ऑफ 8 फ्रेम्स ईच स्टेशन ट्राइज टू सेंड 2 फ्रेम्स। ओके, सो 4 स्टेशन है, 4 स्टेशन ने 2-2 फ्रेम भेजा है, तो टोटल 8 फ्रेम्स हो गए। एंड वी हैव गॉट हाउ मच, 1 2, इसको मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, सो 1 2 3 4, तो 8 में से 4 फ्रेम आपके सक्सेसफुली पास हुए। मतलब आपका जो आपका सक्सेस रेट हो गया, जो एफिशिएंसी हो गई, वो 25% से इंक्रीज हो गई है। एंड यू हैव गॉट 50% फ्रेम्स क्लियर्ड एंड रीच सेफली एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, सो देयर आर सम इम्प्रूवमेंट फ्रॉम प्योर अलोहा टू द स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा में कुछ नहीं, जिसको मर्जी आती है सेंड करो, कोई बिगिनिंग नहीं, कुछ नहीं, जब भी आता है दिमाग में, जब भी आया, जब भी रिक्वायरमेंट आया, यू कैन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा। प्लॉटेड अलोहा ऐसा नहीं भाई, if you have a requirement, then you have to send the data, you have to send the frame at the beginning of the time slot only। okay, जब beginning से start करेंगे and after the beginning, अगर आपका मतलब 0 पॉइंट है या फिर जो भी आपका beginning है, beginning मतलब 0 ही नहीं, खाली आपका जो beginning है, slot 2 का beginning ये है, आपके slot 3 का beginning ये है। okay, slot 4 का ये है, and so on। okay, so if you miss the beginning, then you need to wait for the next time slot। okay, so that's all for the slotted aloha, or this is the explanation of the this one। okay, so I don't think after explaining this diagram हमको कुछ read करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, so with this now let me see what is the time। भाई साहब टाइम कितना हुआ, टाइम देख नहीं रहा एक्चुअली, 45। okay, so कोई बात नहीं, we'll wait over you।
we stop over here. After doing this one, please let me take a short revision what we have done today. So we started with the media access control, or we can say medium access control, or in short MAC. Okay, so we have introduction that if you want to share, if you want to use the same medium or the same link for multiple users or multiple station who wants to transmit and to receive the data, then it that particular medium has to we have to control the access of that particular medium. Okay, otherwise what will happen, the situation will be like that. Okay, so there will be a fighting like situation, and there will be a collision of more packets and or more frames. Okay, end result what they have to do, they have to resend the packets again and again, so वो बहुत hectic है. तो इसके लिए क्या करें हम लोग को, we have to maintain and we have to control the access of the medium. Okay, and in order to control the access, we have multiple access control protocol, or we can say multiple access protocols. Okay, so if we see the category, then we have random access protocol, we have controlled access protocol, and we have channelization protocol. In the random access protocol there is no rules regulation, कुछ नहीं है, कोई schedule timing नहीं है, जिसका जब भी requirement आया, any station can send the data or can transmit the data at any moment of time. Okay, there's no schedule for these. Okay, so in that particular protocol, that is random access protocol, we are having Aloha. In Aloha, we have the pure Aloha and the slotted Aloha we just discussed now. Okay, we have CSMA, that is carrier sense multiple access. Then we have carrier sense multiple access with collision detection, and at last we have carrier sense multiple access with collision avoidance. Okay, so it all comes under the random access protocol. Then we have a controlled access protocol, like we have a reservation, polling, and token passing. These are the three methods which comes under the controlled access protocol. यहाँ पर इनका टाइम टेबल होता है, इनके इनके रूल्स होते हैं, कौन सेंड करेगा, भाई एक सेंड करेगा तो दूसरा खामोश बैठो, दूसरा सेंड कर रहा है तो पहला तीसरा खामोश बैठो, एंड सो ऑन. ओके, so all the things are controlled in this kind of protocols. Okay, so what we have done today, we have done the pure Aloha and we have done the slotted Aloha. Okay, after this lecture or after all the lecture, you can just go through the topic. Okay, Aloha को एक बार वापस से go through करना. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, if you have attended the lecture, then please revise it once. Okay, after completion of the college, उसके बाद में एक बार revise कर लिया करो. The topic will be revised और आपका stack में वो चीज़ें आपके ऊपर आ जाती है. ठीक है, so it will आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा इससे, और आपको याद भी रहेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके स्टैक में वो चीज़ ऊपर आती जाएगी, वरना नीचे 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 काफ़ी नीचे चले जाएगी. ओके, so overall, thank you so much. Let me stop at this point. Yeah, stop the recording. Mohammed Salim Khan.